ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ ਸਹਾਇਤਾ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਕਨ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਈਕਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਅਤੇ ਅਨਸੀਡਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੁਆਮਿਸ਼, ਸਲੇਵਰਟੂਥ ਅਤੇ ਮਸਕੁਇਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਰਦੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨ, ਡਾਕਟਰ ਲੀਨਾ ਜੈਨ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਰੀ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਫੰਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਐਟ ਹੋਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ 140 ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਫੋਕਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UBC ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਵਿਊ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲ ਜੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰਨਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲ ਜੈਨ। हेलो, नमस्कार सब लोगों को और सत श्री अकाल। जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर जैन बोल रहा हूँ आज, और आज के टॉपिक है लकवा के बारे में, और आप अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए क्या कर सकते हो जिनको ये उस वक्त रिस्क है, या जिसको ये कोई सिम्टम्स आए तो क्या करना चाहिए। होपफुली ये जो टॉपिक है हम सब लोगों को हेल्प करेगा और हमारे परिवार को भी हेल्प करेगा। सॉरी, मेरे स्लाइड का थोड़ा प्रेजेंटेशन में कुछ थोड़ा सा नुक्स था, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन इस तरह से करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कॉमन टाइप स्ट्रोक्स के कौन से हैं। तो 3 किस्म के हैं जो 90% से ज़्यादा लकवा के कॉजेज होते हैं। एक तो है हेमरेजिक, जिसमें खून की नस फट जाती है दिमाग में और खून जम जाता है, जिसकी वजह से लकवा हो जाता है लोगों को। दूसरा नंबर है इश्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड क्लॉट बन जाता है ब्रेन के नस में, और वहाँ पर ब्लड फ्लो जाना बंद हो जाता है। और ये दोनों जो होते हैं एकदम हो जाते हैं, इसमें इंसान बिल्कुल ठीक होता है और एकदम हो जाता है, इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स या मिनट्स ये चीज हो जाती है। जो लास्ट वाला है वो सबसे कॉमन है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या कुछ लोग जो कहते हैं प्लैक। जैसे दिल में प्लैक हो सकता है, वैसे दिमाग के नसों में प्लैक हो सकता है, और इसको बनने में कई साल लग जाते हैं, और ये सबसे कॉमन टाइप होता है। तो लकवा में होता क्या है? तो सबसे पहले कुछ लोगों में होता है जो चेहरे में ड्रूपिंग, एसिमेट्री, इनके जो होंठ है थोड़े नीचे की तरफ आ जाते हैं, इनकी बाजुओं कमज़ोर हो जाती है, टांगे कमज़ोर हो जाती है, बोलने में इनको तकलीफ होती है, थोड़ा ड्रूपिंग होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं फास्ट, FAST। F यानी फेस, चेहरा, A आर्म्स यानी बाजू, S स्पीच यानी बोलना, और T इज टाइम। टाइम का ये मतलब है कि आपको 911 फटाफट बुलाना चाहिए, इसलिए कि अगर ये पहले आधे घंटे में इसका इलाज हो जाए तो फुल रिकवरी हो सकती है, एंड अगर पहले 2 घंटे में हो जाए तो काफ़ी लोगों को फुल रिकवरी हो सकती है। तो 911 बता के उनको कह देना कि पेशेंट को इस वक्त पे ये सारा हुआ है, वो जल्दी आ जाते हैं, इमरजेंसी ले जाते हैं, और वहाँ पर इलाज फटाफट होके पूरी रिकवरी हो सकती है। अब ये कैसे होता है? ये कुछ हमारे ब्रेन के हिस्से हैं जिसकी वजह से हमें वो चीजें होती हैं। तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है जो आगे की तरफ, फ्रंटल लोब। इसमें क्या होता है कि आदमी की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। कुछ लोग वो थोड़ा बहुत गुस्से या पैरानॉइड, या हो सकता है कुछ बड़बड़ाने लगते हैं,
और उनको समझ नहीं आ पा रहा, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं और करते कुछ और है। जो सबसे कॉमन जो लोग जानते हैं वो है पाराइटल लोब, और ये बीच वाला हिस्सा है राइट और लेफ्ट साइड पे। और इसमें क्या होता है कि बाजू टांगे कमजोरी हो जाती है, जो आम इंसान को पता लग जाता है जल्दी से। तीसरा हिस्सा है ऑक्सीपिटल लोब, ये जो पिंक में है, ये है आंखों के, और ये करीब 1/3 पीछे वाला हिस्सा होता है, जिसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, निगाह में एकदम दिखाई नहीं देता, जैसे सफेद पर्दा आ जाता है, या ऊपर आदमी देखता है उसको काला काला दिखता है, या नीचे देखता है काला काला दिखता है, उस तरह से। चौथी जगह है टेम्पोरल लोब, ये है याददाश्त, मेमोरी का। इसमें वो भी आ जाता है कि कभी कभार जैसे टेम्परेचर वगैरह, इसमें पता नहीं लगेगा जल्दी से कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और ये जनरली होता है एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज में या प्लैक में। तो धीरे धीरे इन लोगों को याददाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है, सटिया जाते हैं। जो दूसरा 5वां हिस्सा ये नीचे वाला है जो ग्रे में है, इसको सेरेबेलम बोलते हैं, और ये करता है बैलेंस। तो आदमी बार बार गिरता है जब ये जगह इन्वॉल्व हो जाती है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं स्ट्रोक के? स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर जैसे हार्ट के रिस्क फैक्टर वही चीजें होती हैं। तो ये जिन लोगों को हार्ट की बीमारी हो जाती है, उनके चांसेस ऑफ स्ट्रोक 2-3 गुना बढ़ जाते हैं या उससे भी ज्यादा। एंड जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, उनका 8 या 9 टाइम्स द रिस्क होता है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हाई है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है, जैसे मैंने पहले बोला था कि नस फट जाती है और इसमें खून जम जाता है, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ही हाई रहता है, वेरी हाई नहीं रहता है, उनको एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लैक बन जाता है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो जिन लोगों को पेट ज्यादा है, मोटापापन, जो एक्सरसाइज कम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल हम चेक कर रहे हैं स्लीप एपनिया, जो खराटे ज्यादा लेते हैं, जिनका ऑक्सीजन कम हो जाता है उनको है, जिनको शुगर की बीमारी है। लकली जो हमारे कम्युनिटी में सिगरेट लोग ज्यादा नहीं पीते, ड्रग यूज थोड़ा बढ़ने लग गया है खासकर यंग जनरेशन में, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ ये चीजें अवॉइड करें, इसमें स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी जो हमारे पंजाबी कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो चल रही है जो रिस्क फैक्टर में, वो है शराब पीना। तो शराब पीने की वजह से काफी नुकसान हो जाता है, उसमें ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, शुगर भी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, और स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। काफी लोग कहते हैं कि शराब पीने से खून पतला होता है, लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है पीने से 1-2 बारी, इसलिए हम लोगों ने कहा ये हैवी ड्रिंकिंग। और ये कैसे करता है, क्यों करता है, ये मैं अभी समझाने वाला हूँ। ये कैसे करता है, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है कि दिल फड़कने के लिए, और एक किस्म का एक फड़कने का दिल होता है, उसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो कुछ शराब पीने वाले लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है दिल चौड़ा होने की वजह से। इसमें रिस्क होता है ब्लड क्लॉट, जैसे हम कहते हैं खून जम जाता है और वो ऊपर चला जाता है। तो आप देखिए ये जो नॉर्मल हार्ट बीट है, आप देखो यहाँ पर, और उसके बाद एक और हार्ट बीट आता है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एक बारी स्क्वीज करता है, फिर नीचे वाला एक बारी स्क्वीज करता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा 1 मिनट में 400 से लेके 600 बारी बचता है, मगर जो नीचे वाला हिस्सा है वो इतना नहीं बच सकता, तो वो कम बचता है, 50, 100, 120, 150। तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल नहीं रहता, और जब ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं रहता है तो कभी कभार क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। तो ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन है 40% लोगों में हमें क्यों हो रहा है हमें पता नहीं है। कुछ लोगों को ये शराब पीने की क्रॉनिक की वजह से
कुछ लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जैसे वो खराटे ज़्यादा लेते हैं उसके कारण होता है। कुछ लोगों को ये होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, कुछ लोगों को होता है थायराइड के कारण, कुछ लोगों को होता है इन्फेक्शन के बाद। खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन के बाद या निमोनिया के बाद काफ़ी हुआ है। जो ये कोरोना वायरस चल रहा था, मैंने काफ़ी लोग देखे जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो गया। सबसे कॉमन होता है जिन लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। जिन लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है 10 में से कम मैंने देखा है 3-4 लोगों में एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। वो टेम्पररी होता है मगर उनका रिस्क स्ट्रोक का रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों को ब्लॉकेज होती है हार्ट में उनको रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाता है, और कुछ और वजह के कारण भी होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी वगैरह। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में होता क्या है, जैसे मैंने कहा था, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, एक जगह है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, जो मेरे कर्सर में दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लड क्लॉट बन गया, खून यहाँ जम गया, आगे बढ़ नहीं सका। जो खून जो जम गया फिर वो धीरे धीरे ब्लड क्लॉट बन जाता है। जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये मेन जगह पे आ जाता है और ये फिर आगे चला जाता है। जब ये आगे चले जाता है तो ये ऊपर जाके ब्रेन में कहीं पे जाके लकवा कर देता है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था, लकवा वहीं पे जो रीजन पे है उसी हिसाब से आदमी इफेक्ट होता है। अगर पीछे वाले हिस्से में होता है तो आंखों की प्रॉब्लम, अगर बीच वाले हिस्से में होता है तो बाजुओं और टांगों की प्रॉब्लम, अगर आगे वाले हिस्से में होता है तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। अब हम जाते हैं ब्लड प्रेशर पे और पता लगाते हैं ब्लड प्रेशर में क्या होता है जिसकी वजह से लकवा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर में सबसे पहले क्या होता है, जो नस है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ खुली है, ये धीरे धीरे टाइट हो जाती है। और जब ये छोटा हो जाता है, जैसे यहाँ दिखता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जो हम कहते हैं। तो ऊपर वाला जो ब्लड रीडिंग है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो नीचे वाला है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दोनों खतरनाक है। डायस्टोलिक का जो विंडो है जिसमें लकवा के चांसेस है वो छोटा है, तो वो थोड़े से भी बढ़ने से आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जो ऊपर वाला है उसमें फिर भी थोड़ा टाइम है। तो नस को क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, जो ये ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, बाद में नस थोड़ी नैरो हो जाती है और उसके कारण ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस बढ़ने की वजह से, जो प्रेशर बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है दीवारों में, जैसे ये पीले वाला हिस्सा दिख रहा है। और ये जो ब्लैक जो बिल्डअप होता है उसी को हम एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज करते हैं, और वो जो नस को और नैरो करता है, और नैरो होने की वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से और डिपॉजिट होते हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस में और हालत खराब हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नस, मैंने जैसे कहा था, फट जाती है, और आप ये देख रहे हो नस फट जाती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम और भी दिया है, ये ब्रेन एन्यूरिज्म, ये जेनेटिक बीमारी है, और ये हम लोग तब सस्पेशन होते हैं अगर कोई 35 या 40 इयर्स के एज से कम में उनको ब्रेन हेमरेज हो जाए, और उनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं थी, थोड़ी सी थी। अगर इनको, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह नस थोड़ी बढ़ गई है, और ये जो नस जो गुब्बारा की तरह बढ़ी हुई है ये जेनेटिक है, ये खानदानी चलती आती है। और हमें सारे खानदान को, आपके बेटे को, भाई को, बहन को, सबको चेक करना पड़ता है कि उनको पास ये तो नहीं है, बिकॉज आज इसका इलाज है। तो जिन लोगों का ये एन्यूरिज्म होता है, और वो उसका साइज के हिसाब से हम देख के उसी हिसाब से इलाज कर सकते हैं नस फटने से पहले। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली में कोई भी 40 साल से उम्र में कम है
तो प्लीज आप ये इसके लिए जरूर चेक करा लेना अगर उनकी जिनका नस फटा है। तो ब्लड प्रेशर के अलग अलग चेंजेस होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है वो है 120 से 80 से कम। हम लोग इसलिए कहते हैं ये वाला ब्लड प्रेशर लो नॉर्मल बट सबसे बढ़िया है बिकॉज ये आपके शरीर में किसी जगह कोई डैमेज नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है आंखें और गुर्दे। वो सबसे पहले निशानी होती है जहां आदमी को शक होता है ब्लड प्रेशर के लिए। इसलिए हम आपके आंखें भी चेक कराते हैं और जब टेस्ट करते हैं खून का और पेशाब का पता लग जाता है ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे जाता है जैसे आप ये नंबर देख रहे हो। जब ये स्टेज 3 से ऊपर पहुंच जाता है तब नस फटने की रिस्क रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना हफ्ते में एक बारी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। ये नहीं कि दिन में 10 बारी चेक करो। आप प्लीज अपने डॉक्टर से बात करना अगर शक है उनको ब्लड प्रेशर के लिए तो आप चाहे एक हफ्ते के लिए रोज चेक कर लो, उसके बाद हफ्ते में 2 बारी। आप कैसे चेक करोगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करना चाहिए, जैसे इस आदमी को दिखा रखा है कि कुर्सी पे बैठा हुआ है, ब्लड प्रेशर कफ यहाँ बाजू में है, करीब 2 फिंगर्स इस जगह से ऊपर और ज्यादा टाइट ना हो। और लेवल कौन सा है, बिल्कुल आपके दिल के लेवल पे होना चाहिए। आदमी को चुपचाप बैठना चाहिए 2 मिनट के लिए, पहले वाला ब्लड प्रेशर चेक करें, उसको देखें ना कितना है, फिर दोबारा चेक करें और दूसरे वाले का चेक करना चाहिए। और जो मुट्ठी है खुली होनी चाहिए, ये नहीं कि मुट्ठी बंद करके करो, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जो टांगे हैं वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वहां पर दोबारा नुस्खा है। ये है आर्म ब्लड प्रेशर के लिए। कुछ यंग लोगों का रिस्ट प्रेशर होता है। जनरली जो जिनकी उम्र 60-65 से कम है, मैं रेकमेंड करता हूँ वो रिस्ट वाला ना यूज करें। अगर उनको प्लैक है तो रिस्ट वाला एक्यूरेट होता नहीं है। मगर जिन लोगों चेक कर रहे हैं बेस्ट है या वो बाजू ऐसे रखें या कुर्सी पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे थोड़ा सा ऊंचा करके हार्ट लेवल पे चेक करना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर। और इसका बेस्ट तरीका है अपना लॉग बना के रखो, सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर आपको अपने डॉक्टर को हेल्प करनी है, आप हफ्ते में 1 या 2 बारी ब्लड प्रेशर सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले मेक श्योर कि आपने खाना नहीं खाया पिछले 2 घंटे में, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो नॉर्मल है। इसके बाद हम टॉपिक पे जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल यूनिट्स यूज किए हैं जिसमें 200 लिखा हुआ है। अगर आप कैनेडियन वाला फॉलो कर रहे हो तो इसको आप 40 से डिवाइड कर लो तो वो 5 पे आ जाता है। ठीक है जी। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल होता है 5 से कम या बिलो 200। बॉर्डरलाइन हम कहते हैं करीब 5 to 5.5 के आसपास। एंड अगर 5.5 या 240 से ऊपर है तो हम कहते हैं ये एलिवेटेड है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है वो मैंने आपको पहले कह दिया है। ये जो सारे पीले पीले दाने हैं ये कोलेस्ट्रॉल के हैं और ये दीवारों के साथ चिपक जाते हैं। जब दीवारों के साथ चिपक गए तो इनका जो ब्लड फ्लो है, आप देखो नस अंदर से नैरो हो रही है और जो ब्लड फ्लो है वो कम होता जा रहा है। और जब ये 80% से ज्यादा बंद हो जाता है तो नस इतनी इफेक्ट हो जाती है कि जहां पर वो जा रहा था उसको खून की कमी महसूस हो जाती है। 70-80% के आसपास तब जाके ये होता है। अगर बहुत छोटी नस है तो 90% तक भी हो सकता है। अब आप ये प्रोफाइल देखिए और इसमें आपको समझ आ जाएगा कि ब्लड फ्लो कैसे रिड्यूस हो रहा है। तो जब कोलेस्ट्रॉल को हम देखते हैं तो मैंने एक एक्रोनिम यूज कर रखा है, द गुड, द बैड एंड द अगली। जब हम कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल देखते हैं उसमें HDL होता है,
LDL होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है। मैंने ये तस्वीर इसलिए रखी है, जो HDL है ये हमारा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है और इससे आग बुझती है, या जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो LDL है ये आग है, ये हमारा जो प्लेक है इसी से बनता है, LDL से। और जो ट्राइग्लिसराइड है ये तेल है जो आग में लगता है और आग को बढ़ाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, आजकल हम लोग जब प्रोफाइल चेक करते हैं हम थोड़ा रेंज रखते हैं, तो जिन लोगों का HDL 1.5 से ज़्यादा हो या 60, अगर इंटरनेशनल नंबर जो देखा जाए, अगर 60 से ज़्यादा हो तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे आग बुझाने वाला फायरमैन होता है वैसे वो प्लेक पकड़ के थोड़ा कम करता है। अब जो खराब वाला है वो है ट्राइग्लिसराइड एंड LDL। जो ट्राइग्लिसराइड है वो थोड़ा हमारे खाने के बारे में बताता है कि हमने पिछले 2-3 दिन क्या खाया है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, या कितनी शराब पी है, शराब में भी ये बढ़ता है। कुछ जेनेटिक फेमिलियल होता है, जिन लोगों का ये ज़्यादा होता है उनको रिस्क रहता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के लिए, ऑल्सो रिस्क रहता है पैंक्रेटाइटिस के लिए जब ये 10 से ज़्यादा हो। अब सबसे खतरनाक वाला है LDL, जिसकी वजह से जो जमता है नसों में और जिनकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो ये जब 5, 4.5 या 5 से बड़ा होता है, हम लोग कहते हैं डाइट से कंट्रोल करो या दवाइयों से। मगर इसमें हम लोग देखते हैं कि आपके रिस्क क्लासिफिकेशन क्या है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आपके फैमिली में कोई बीमारी नहीं है तो हम कहते हैं आपका रिस्क लो है, तो हमको इसको 4.5-5 से कम रखना चाहिए। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है तो हम लोग उनको कहते हैं ये 3.5 से कम रखना चाहिए। और जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है या फैमिली में जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो या जिनको स्ट्रोक हो चुका है, तो हम कहते हैं इसको 1.2 से कम रखना चाहिए या 1.7 से कम रखना चाहिए। तो ये हमारा गेज है, जिस गाइडलाइन है, रूलर है, जो हम फॉलो करते हैं एज अ डॉक्टर। तो जैसे मैंने आपको कहा था हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डाइटिशियन और बताएगा, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट है हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स खाएं, और हम जो तली हुई चीज़ें हैं या जिनमें शुगर ज़्यादा है या शराब, इसको अवॉइड करें। हमारा अगले रिस्क फैक्टर है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़। ये हमारे साउथ ईस्ट एशियन में बहुत प्रेवलेंट है, बल्कि सारी दुनिया में जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशियंस का सबसे ज़्यादा है। डायबिटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? आम इंसान से रिस्क कम से कम 3 गुना ज़्यादा होता है स्ट्रोक के लिए या हार्ट के लिए, तो इससे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉजेज़ क्या हैं डायबिटीज़ के लिए, वो तो हमने आप लोगों से पहले भी बात कर चुके हैं, पर मेन है वही ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, जिन लोगों का डाइट बहुत ख़राब है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, और कुछ हद तक उम्र के साथ, और फैमिली। तो चक्कर क्या होता है डायबिटीज़ में, हमारा जो खून है वो पानी की तरह चलना चाहिए। जब शुगर बढ़ जाता है तो वो पानी की तरह नहीं, वो हनी या सिरप या की तरह चलता है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है और थोड़ा खून गाढ़ा हो जाता है। उस गाढ़े होने के चक्कर में क्या हो जाता है, हमारे या प्लेक बन जाता है या ब्लड क्लॉट के रिस्क बन जाता है। और ये जब प्लेक या थ्रोम्बस बनता है तो रिस्क स्ट्रोक का बढ़ जाता है। तो बॉडी क्या करता है, इसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो शुगर वाले का
और रिस्क बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर के लिए, रिस्क बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाने के लिए, थोड़ा शरीर के अंदर सूजन भी हो जाती है, जो हमारी नसें हैं वो थोड़ी स्टिफ हो जाती हैं, तो उसके कारण ये सारा हो जाता है। ये प्रोसेस है जो शरीर के अंदर होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस और जो ब्लड क्लॉट का कुछ लोग वो ठीक से नहीं समझ पा रहे, तो मैंने थोड़ी ये स्लाइड रखी है यहाँ। एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लैक जो है, इसको बनने में 2, 3, 5 साल, 10 साल, 15 साल लग जाते हैं, मतलब ये ओवरनाइट नहीं हो जाता। जो थ्रोम्बस है वो किसी के कारण ब्लड जो है ना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और एकदम ब्लड क्लॉट जैसे बन जाता है। ये चीज बन जाती है कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में, या 1-2 दिन के अंदर अंदर। ये फर्क है। तो शुगर के लिए हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं? शुगर जो है उसके कई तरीके होते हैं। जो सबसे कॉमन और जो सबसे गाइडलाइन जो फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइज, वो है हीमोग्लोबिन A1C। हम लोग ये कहते हैं जिनका शुगर 6 से कम है उनको बिटवीन 5.7, 6.2 हम उससे कहते हैं प्री डायबिटिक, मतलब आपको शुगर की बीमारी होने वाली है, अभी डाइट से कंट्रोल कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लो, तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। अगर नहीं कंट्रोल करोगे ये शुगर की तरफ, डायबिटीज की तरफ चला जाता है, फिर हमें दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है। दवाइयाँ कब शुरू करते हैं? जब 7 से ऊपर हो। अगर कुछ लोग जो थोड़े ज़्यादा शरीर से चौड़े हैं, मोटे हैं, हम 6.5 के ऊपर भी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं और उनके लिए ये अच्छा रहेगा। अब शुगर जो हीमोग्लोबिन A1C है वो तो इंटरनेशनल है, सब लोग वही फॉलो करते हैं जो नंबर्स मैंने बताए हैं। जो हम लोग शुगर चेक करते हैं वो थोड़ा अलग है। हम यहाँ पर स्केल के हिसाब से 6, 7 या जो भी है उस हिसाब से, इंडिया में, यूएस में हम लोग नंबर यूज करते हैं जैसे 100, 110, 120, 200, 250। तो फर्क क्या है? जो हम कनाडा में यूज करते हैं उसको मल्टीप्लाई आप कर दो 18 से, तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे आपको इंटरनेशनल वो दूसरा नंबर मिल जाएगा कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी शुगर फास्टिंग 10 है तो यूएस के हिसाब से 180 हो गया, या इंडिया के हिसाब से 180 हो जाता है। ये है कन्वर्शन। अब आपको शुगर की बीमारी है या नहीं, हम लोग 4 तरीके से हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं और कह सकते हैं आपको शुगर की बीमारी है। तो सबसे पहले है हीमोग्लोबिन A1C, जो मैंने कहा सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था 6 या 6.5। ठीक है जी। 6 पे हम लोग कनाडा में कहते हैं कि भाई आपको डायबिटीज है, डाइट कंट्रोल में है। 6.5 पे कहते हैं दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 7 से ज्यादा आता है, 7 पॉइंट, कुछ लोग ये भी कह देते हैं 8.3, अगर वो 8.3 से ज्यादा है हम कह देते हैं सीधा कि भाई आपको है फास्टिंग। तीसरा तरीका है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको शुगर का पानी देते हैं, फिर आपके आधे घंटे बाद पहले शुगर चेक करते हैं, पानी देंगे जिसमें चीनी मिलाई हुई है, फिर उसको हम लोग आधे घंटे बाद चेक करेंगे, फिर दोबारा 2 घंटे बाद चेक करेंगे। अगर 2 घंटे के बाद आपका शुगर 10.3 या 200 से ज्यादा है तब हम कहते हैं आपको शुगर की बीमारी है। चौथा तरीका ये है रैंडम। अगर आपका रैंडम शुगर 10.5 से और 10.3 से ज्यादा आता है फिर हम कहते हैं आपको मोस्ट लाइकली शुगर की बीमारी है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए? बेस्ट तरीका है शुगर आप अपना सुबह सुबह चेक करो फास्टिंग, अगर आपको लगता है। तो एक है फिंगर डिवाइस जो बहुत अच्छा है, मगर उससे ज्यादा अच्छा है ये जो नया सिस्टम आया है वो है ग्लूकोज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, आप अपने फोन के साथ, या ये जो काला पाम है ये आपको 24 घंटे बता देगा कि शुगर कैसे चल रहा है।
तो ये एक पैच होता है जो सफ़ेद नज़र आ रहा है यहाँ, ये आपकी बाजू में जा सकता है, पेट के ऊपर जा सकता है, पीठ के ऊपर भी जा सकता है। ये वहाँ 1 हफ्ते तक रहता है। और ये जब भी आप अपने फ़ोन के साथ ऐसे छेड़ लगाओगे या पाम के साथ ऐसे करोगे, वो आपको उस वक्त का शुगर बता देगा। तो ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे अपनी शुगर चेक करते रहो, आप सुबह चेक करना। जब भी आप कुछ खाओगे आप देख सकते हो कि 2 घंटे बाद शुगर कितनी चल रही है। तो इसमें मेरे पेशेंट्स जिनके मैंने इस्तेमाल किया काफ़ी अच्छा उनको महसूस लगा, इसलिए कि उन्होंने देखा कि आज मैंने ये खाया, मेरी शुगर इतनी बढ़ी है और इतनी देर के लिए बढ़ी है। तो वो अपने आप को स्ट्रिक कर देते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, या ये चीज़ खाने से 1 घंटे बाद मेरा शुगर एकदम ऊपर हो जाता है या 15-20 मिनट के बाद एकदम ऊपर हो जाता है। इससे ये भी होता है जब शुगर लो है वो चेक करते हैं। ये डिवाइस अलग-अलग कंपनीज़ के आती हैं। इस वक्त जो यहाँ लगा हुआ है फ्रीस्टाइल लिब्रा है, दूसरा भी आता है डेक्सकॉम। ये धीरे-धीरे ये टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है और काफ़ी एक्यूरेट हो रही है। ब्लड शुगर चार्ट बेस्ट है, या अगर आप कंटिन्यूस मॉनिटर नहीं है तो आप प्लीज़ वो चार्ट बनाओ। आप सुबह फास्टिंग का लिखो 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के बाद आप लंच के बाद 2 घंटे बाद कितना आ रहा है, या नाश्ते के बाद 2 घंटे बाद कितना आ रहा है, या डिनर के 2 घंटे बाद कितना आ रहा है। और डॉक्टर का काम होगा हर 3 महीने चेक करने के लिए कि आपका हीमोग्लोबिन A1C कितना है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है हर 3 महीने चेक होता है, जिनका प्री डायबिटिक है हम हर 6 महीने चेक करते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, जो चीज़ हम खाते हैं कैसे पता लगे कि वो ठीक है हमारे लिए या नहीं। 2 घंटे के बाद नॉर्मल जो शुगर होती है वो आ जाती है 120 या 140 पे, या आप समझ लीजिए करीब 6 और 7 के बीच में। इमीडिएटली खाना खाने के बाद ये 10 के आसपास होती है। जिन लोगों को प्री डायबिटिक है या इम्पेयर्ड ग्लूकोज जो कहते हैं, उनका आ जाता है 10 से ऊपर, और इनका आता है करीब 8 के आसपास 2 घंटे बाद। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है तो इनका आता है करीब 12 से लेके 15 तक, और उस 2 घंटे के बाद इनकी शुगर तब भी ये 10 से ऊपर होती है। इसका मतलब जो उन्होंने खाया उसमें शुगर ज़्यादा है, उनको वो अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग टीका लगा रहे हैं इसका मतलब है वो टीका जो है या कम है या उनको दूसरा टीका की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए आप उनको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर को कैसे हेल्प कर सकते हो? अपने आप को हेल्प करके ये इसका चार्ट बना के, जैसे मैंने कहा था आपको। हमें क्या टारगेट करना चाहिए? फास्टिंग 100 से कम या 7 से कम होना चाहिए। हमें खाना खाने के बाद ये होना चाहिए 10 से कम 2 घंटे बाद, और रात को सोने के वक्त ये 7.5 से कम होना चाहिए, और जो 3 महीने का एवरेज है 7 से कम। अगर हम नहीं रखते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन कहाँ बढ़ेंगे? रेटिनोपैथी, मतलब आंख के अंदर। काफ़ी आपके जानकार होंगे जिनकी आंखों की नस शायद फट गई होगी, उनके विजन में प्रॉब्लम हो गई, या कैटरैक्ट जल्दी से हो गया। कुछ लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, कुछ लोगों के टांगों में वो सुन हो जाती हैं, या उनको लगता है कि जैसे जल रहा है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर के। जो लोग शुगर कंट्रोल करते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है 10, 15, 20 साल बाद। जो लोग शुगर नहीं कंट्रोल कर पाते उनको हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, गुर्दों के प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से डायलिसिस पे जाना पड़े,
लोगों को फुट के अल्सर्स हो जाते हैं, फिर वो हील होने में कई महीने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो ठीक खाने पीने से, एक्सरसाइज करने से। और बाकी जो रेस्ट ऑफ माय कॉलीग्स जो आए हुए हैं आज, आपको और भी समझाएंगे। मैं सबको धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। और प्लीज़ आप अपना सेहत का ख्याल रखिए और अपनी डॉक्टर को हेल्प करिए बाय लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ। नमस्कार, थैंक यू। ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। BC ਸੀਨੀਅਰਸ ਗਾਈਡ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਲ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰਨਿਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਲੀਨ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਨੂਪ ਸਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੰਦਨ ਐਂਡ ਸੁਖਵੰਤ ਬਨਮੈਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ IT ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਏ ਹੋ, ਮਿਲੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।